Jai Jinendra, and welcome to the second session of Jain Ratna Forum of Professionals. Today, I think we have a special guest with us, Mr. Anil Kumarji Singhi, and we'll talk about markets, COVID, government policies, and Jain philosophy. It's a big day with the finance minister coming over last 4 days with various sets of measures for us. And then we have something which we correlate with Jain philosophy. But before I start that, I generally say for professionals, knowledge is born out of sense of wonder and mystery. Out of all creations, man alone has this capacity to inquire. And questions are born out of our interactions, generally while watching things, incidents, people around us. And out of this confrontation, I think we deduce principles of science and spirit. Jain philosophy is a science and a complete science, and I generally call disciple Gautam Gandharv as a lead which asks 36,000 odd questions to Lord Mahavira to actually have entire research on life and all the things around life. I generally call, I think, the Jainism and Jain philosophy is metaphysical, ethical, spiritual, philosophical, with a lot of social concepts, and through his outstanding queries, Gautam Gandharva, I think covered a lot and educated all of us. On that path, I think is where our forum for professionals is, and we have had encouraging responses from our last session, and I'll read out, I think, a couple of them for each one of us, just to this thing. I think I add verbatim. I think amazing webinar. Love the way Nilesh Shah connected investment strategies with Jain philosophy. Very inspiring. Definitely gets a listener to delve further into religious philosophies. I think another good professional friend of ours, I think, attended the session today. The mix-up of religion and financial markets was absolutely brilliant. It was different and unique. Do let me know if I can help with something. I think another, good person. I think I have been in Singapore for a long time, and this is the best way I could have connected with Jain philosophy across. A good young student. I think I joined because I was asked by my father, but I'm happy that I did, and I'll be regular from here on. The last one, I think, for all of us, I kept everything away to listen to the talks from 11 to 12. Want to participate in this initiative in whatever manner possible, and we let me know. With those introductory parts, I would generally go to our president, Satya Saab, to, I think, take us through. Satya Saab, I think, over to you. Thank you. I think Tatya Saab connection, I think on overall part must have got disconnected, but important part which will come from the President sir, I think we'll hear from him. And till the time I think we proceed over there, I will just start with Anilji for us. And Anilji has been so kind enough to be with us. 26 years of diversified experience. The man who took Z Business to #1 business channel in India. He's a managing editor and had been there for 2 years. Before that, with CNBC Awaz for 13 years, and a personal friend and a senior chartered accountant for me. Being together as a student, as well as I think seeing as a professional, and to grow something like this and advise us now. I think it is a pleasure to have you, Anilji, over here. Apart from television, I think Anilji shares his views on various radio channels, BBC London, London Hindi Service, My FM, Big FM. His articles and chats are featured on popular websites across. No big introduction required. I think he directly comes from studio after covering the FM speech, and I think comes to us. I think that being the introduction, I think we have Tatya Saab back connected. I think I'll hand it over to Tatya Saab, please. Tatya Saab. अखिल भारतीय श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ जोधपुर के ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में मैं आज सबसे पहले हमारे आज के कीनोट स्पीकर
और श्री अनिल जी सिंह भी, एडिटर इन चीफ ऑफ द जी बिजनेस का बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ में श्री शेखर जी भंडारी जो कि कन्वेनर है, और यहाँ के ये सारे आज के इस कार्यक्रम के लिए, इस पूरे प्रोग्राम के जो भविष्य में होने वाले उसके लिए सारे जो प्लानिंग है, जो कंसेप्ट हैं, वो शेखर जी भंडारी द्वारा दिए गए हैं। मंजू जी भंडारी हमारे पास में श्राविका मंडल की अध्यक्ष, युवा परिषद के अध्यक्ष श्री मनीष जी मेहता, आप सबका स्वागत। और विशेष रूप से मैं उन प्रोफेशनल्स का स्वागत करना चाहता हूं जो इस कोविड-19 के ऐसी एपिडेमिक में, जहां पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था हिल चुकी है और जहां पर प्रोफेशनल्स को प्रोफेशनलिज्म दिखाने का एक सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है, उन लोगों का ये रुचि और उसके साथ में इसे धर्म से जोड़कर देखना, इसके नाम से ही आपको पता चला होगा कि ये जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ का प्रोफेशनल्स फोरम है। और आज इस प्रकार का जो पेंडेमिक आया है, इस पेंडेमिक के कारण से जो इश्यूज रखे गए हैं, उस पर मैं आपको 1-2 मिनट के लिए बात करना चाहूंगा। आज हमारे टॉपिक्स में हैं मार्केट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कोविड-19। मैंने इसका कहा है देयर आर स्टेट पॉलिसीज. The state policies are being executed by the government. The government changes, and periodically after election, same government comes or new government may come, but the state remains as it is. The main aims and objectives of state are given in the constitution. The theme is to achieve those objects, reach to those goals, so as to have a complete social welfare state in the country. For that purpose, the government policies are the state policies are the ultimate goal to be achieved. Government policy is a projected dream for present because the dream will change with the time. Therefore, the government policy is a projected dream for the present. Market is the working force. Then COVID-19 is LR. The market force, we take up first the market force. Then if we think that the market force is moving in which direction, it was earlier dependent upon the government policies. But after globalization, in my personal opinion, now the global economic rulers are ruling, and they are influencing the policies of the government. And there is a direct nexus with these things. And therefore, we are talking with a very sensitive issue, that markets, the markets and the economy, because the present economic rulers, they are influencing. And first lesson we can take from this corona epidemic itself. This corona pandemic, everything was closed. All things were closed. All temples were closed. All churches were closed. All sthanaks were closed. Or Samuhik Pravachan were closed, or Samayik closed, all Samuhik Pratikraman closed, everything closed. The biggest player in the world, the railway closed. The international flights, national flights, all stopped. A biggest industry in India stopped. A pettiest, poorest person of a shopkeeper, a khomche wala stopped. The all persons who were working to help the big cities, they are fleeing to their cities, their villages, and their number may vary from 8 crore to 18 crore. They are displaced person now in one single a pandemic, in one single pandemic. And you will surprise that this is not the first case. The earliest was the Spanish flu, where 6 crore person died. 6 crore person died in Spanish flu. Famous Indian famine of 1867. 5 crore people die only in India. These are the events which happens and which will happen. Question is that what lesson we learn from this corona-19, how the market is influenced by the economic player is very clear from one thing, that in red zone,
The first opening was the liquor shops. Then the people came to know about their strength, that how important is the liquor in the Indian economy. The budget of 1990-20, it says that the government revenue, the state revenue, because it is not under GST, its revenue will be 1,87,000 crore rupees of liquor only. 1,87,00,000, which government intended to have 2 lakh crore from only liquor. Whereas what we are doing is in other trades we are dealing with. Arms lobby, how strong it is. Nobody can imagine the volume in which they are playing when the liquor is this much of that. And the population and the votes are influenced is clearly indicative of the scenario after the opening of the liquor, when every person, every shopkeeper was so busy and the line was in kilometers. These are the voters. So the liquor is there, the voters are there, the economy is dependent upon the liquor. Next comes to the beef. How million tons of the beef is being exported by India to other countries, where the other countries are eating the meat and we are selling the meat. The meat trade will be more than 6 lakh crore of rupees export from the India. And against the 6 crore metric ton of the beef. Now, the next is when the fishery industry, which is presently 55,000 crore, it will be within no time will be the projected estimate is 1 lakh crore metric ton of the fishery product will be exported from India. We are talking about the Ahimsak Desh. We are talking about the Nirvasniya Jeevan. Then we can't ignore these big players, and therefore the presence of the religion is absolutely necessary. Acharya Radhesh in his book said that राजनीति धर्मनिरपेक्ष हो गई और धर्म राजनीति निरपेक्ष हो गया. आज ये स्थिति हो गई कि आज हमें हमारी कुछ बातों करने के लिए भी हमें ये लगता है कि कहीं हमें कहीं लेबल नहीं कर दिया जाए. I am talking about the government policy. I am talking about the national policy. The national policy, Article 47 and 48 of the Indian Constitution, specifically provide directive principles जो एक मानने के लिए गवर्नमेंट के लिए है. स्टेट की ड्यूटी है उसमें गाय के स्लॉटर पर प्रतिबंध लगाना एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट बनाया गया है. दूध देने वाले बफेलो को भी उसका पार्ट बनाया गया है. नशा मुक्ति के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन बनाए गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाए गए. वी आर टॉकिंग अबाउट द लिकर. 2 लाख करोड़ की रेवेन्यू होगी, 2 लाख करोड़ की रेवेन्यू होगी. एंड उसके साथ में अब टबाको लीजिए. कोरोना वायरस में कितने लोग मरे हैं, कोरोना वायरस में कितने लोग इन्फेक्टेड हैं. जस्ट वी कैन लुक इनटू द लेटेस्ट टुडेज फिगर्स. Just I missed it. There is possibility of death of more than 2 lakhs. Even in America, it was anticipated. The lakhs of people will die in this corona. But how many persons are dying every year because of the one commodity, and that is tobacco? Can you imagine? All you are professionals sitting here. Anybody who is working in this field of the anti-tobacco movement, whether he is knowing, in the world, 80 lakhs people every year die because of the tobacco only. Because of tobacco, 80 lakhs. 8 million people are dying because of the tobacco. In India, 14 lakhs people are dying because of the tobacco, and that too also not a simple death, an instant death by killing by a bullet, but it is a painful, torturous death by suffering the cancer for a long period of years. And therefore, who are the real player in the economy? Therefore, our first lecture was by Sri Shah, Nilesh Shah was on this
theme. And the same thing is that because today we are, if not taking lesson from the what is happening in the economic market and who is ruling, I think we will be committing serious mistake. If we are not following the principles of the Jain religion, definitely we are going to harm the humanity itself. And therefore, I hope that the Sri Shekhar Bhandari will lead us to take that a particular point that we can present ourselves that this is the way in which the religion can help the state policies without loss of the income, and it can work for the benefit of the entire nation and each individual human being. Today, I very much thankful to the Sri Anil Singhvi, who has spared some time, and that too on the day when the Honorable Finance Minister has addressed. So he is today was very busy, and still he is busy, but he spared some time. I welcome again all the persons who are viewing this our webinar. I always will welcome them in our next webinar also. Thank you very much. Thank you, Tatya Saab. Thank you for your kind address. I think I did introduce Anilji, but I think let me tell very simple introduction. A very down-to-earth person who creates organizations and creates the number one things in the world. I think what we see in Z business is what I think he has created. So welcome, Anilji. First few words from you before I think we start the question and answers. But welcome on behalf of the forum. Thank you very much. Thank you, sir. आप सभी को सादर जय जिनेंद्र. And thank you so much, Shekhar ji, for your kind words and appreciation. First of all, I really want to apologize all of you for change in time. All of a sudden, it has happened that press conference of Finance Minister timing has been changed. Actually, last 4 days we were witnessing that she was doing press conference at 4 o'clock in the afternoon. And today, being Sunday, she decided to come at 11 o'clock. And then coincidentally, I mean, we have the same timing. So I had to request, and you are so kind enough to accommodate and change the time. So I really want to thank all of you from the bottom of my heart that you had to change your plans according to all those things. So first of all, thank you so much. And thank you so much for having me. It's always been special to be in touch with our community and talk about current affairs things and all those. Basically, because when we talk about business, we talk about economy, markets, and all. Generally, I mean, the one thing is always missing, which is your value part, because business and economy and markets are all about money, but we hardly talk about how business can be done with your values, what you learn from your religion. And we are fortunate enough that we born in Jain Dharma, and we follow those principles which teach us that we can run businesses according to our principles, and we need not compromise, and still we can do good businesses, because you can see the most of the successful businessmen and Jain community itself contribute to almost 23-24% of tax being collected by Government of India, and we are known for teetotalers, no other kind of bad habits and all those things, and we try to have best practices in the business, and still we do it. So we all are proud of that, and I hope that we keep continue doing that, and we show the right path to our fellow businessmen and fellow citizens. That's what I can say, Shekhar ji. Yeah. नहीं, thank you, and बहुत धन्यवाद अनिल जी. Thank you very much. Thanks for accepting and adjusting your time schedule as well. I know it is it is not very easy. Just to start, I think for our viewers across, and that's what the professionals want. मनुष्य अर्थनीति में जितना समय लगाता है, उससे आधा समय भी अगर धर्म नीति में लगाए, तो हम कहते हैं कि हमारा उद्धार हो जाए. इकोनॉमी और गवर्नमेंट पॉलिसी के संदर्भ में आई थिंक इस पे अगर आप कमेंट करें, इस पे अगर आई थिंक इफ यू कैन शेयर योर व्यूज विद अस. देखिए, सांसारिक चीजें और धर्म दो
अलग एक्सट्रीम है एक्चुअली। और या तो आप एकदम सांसारिक हो जाएं, या आप एकदम धार्मिक तरीके से दीक्षा ले लें और गुरु भगवान बन जाएं, महाराज बन जाएं। लेकिन प्रॉब्लम है कि हम बीच में हैं, और जब हम बीच में हैं तो हमें ये हमेशा द्वंद रहेगा दिमाग में कि हम क्या करें, क्या कर रहे हैं वो सही है और क्या कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन इस द्वंद का एक ही तरीका है दूर करने का, और वो ये कि कैन वी हैव बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, right? Being a businessman or a professional, can we follow certain principles which are given by our religion? तो अगर हम धर्म की कुछ अच्छी चीजें हम अपने पास ले लें, बिजनेस की कुछ चीजें अपने पास अच्छे से ले लें, और उन दोनों को मिक्स करके अगर करें तो ये काम बहुत अच्छा हो सकता है। सिमिलरली इस वक्त जो सबसे बड़ी जरूरत है वो ये है कि जब इकोनॉमी मुश्किल वक्त से है, जब बिजनेसेस मुश्किल वक्त से है, तो आपको दो चीजें करनी होंगी। पहला, सरवाइव करना। सबसे पहला काम सरवाइव करना। सरवाइव करने में न सिर्फ आपको अपने बिजनेस और प्रोफेशन या जॉब को बचाना है, बल्कि आपके साथ जो लोग हैं उनका भी आपको ध्यान रखना है। क्या हम ये सोच सकते हैं कि 2020 एक ऐसा साल है जहां हम ना कमाएं तो चलेगा? ये बड़ी चीज है। और अब कई बिजनेसमैन के लिए, प्रोफेशनल के लिए दिमाग में उतरना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, कई जगह हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और कम से कम मैं मेरे 25-26 साल के करियर में 3 या 4 बार ऐसे मौके देख चुका हूँ जब कॉस्ट कटिंग की बात आती है तो सबसे पहले कि इतनी स्टाफ स्ट्रेंथ कम कर दो, सिंपल। दिस इज द बिगेस्ट contributor to the overhead, so why can't we reduce our staff and then bring it down to 30-40% lower or whatever, 20% lower? Is that right strategy? I think not. Simple ये है कि अगर आप किसी एक आदमी को जॉब से निकालते हैं तो उसके पीछे पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, EMIs होंगी, होम लोन्स होंगे, कार वगैरह, क्या नहीं होता है। और उसका जो इम्पैक्ट पूरा आप इकोनॉमी पर आते हैं एक के बाद एक पढ़ते हुए, एक फैमिली नहीं लेकिन एक फैमिली की जैसे कई सारी फैमिलीज, कई ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसा करें तो उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। सो क्या एक बेहतर तरीका ये हो सकता है कि आप हल्का फुल्का सैलरी कट सबको दे दें और जॉब से लोगों को ना निकालें? यहाँ पर आपको थोड़े से ना आपकी इमोशनल वो चाहिए कि आपको थोड़े, अगर वैसे संस्कार हैं कि आप लोगों के बारे में सोचते हैं, ऐसा दिल रखते हैं, तो ही आप कर पाएंगे। दूसरी चीज है कि क्या सॉल्यूशन यही है कि आप लोगों को निकालें? क्या कॉस्ट बचाने के बेहतर तरीके हो सकते हैं? मैं ये समझता हूँ कि कम से कम हम प्रोफेशनल लोग इस बारे में बहुत अच्छे से सोच सकते हैं, implement कर सकते हैं कि we can find out so many other ways and means how we can reduce cost, we can save cost, and accordingly we can save most of the employees. तो मेरा पॉइंट ये है कि आप अपनी अगर फिलोसॉफी और अगर अपने रिलीजन को साथ में लेकर बैक ऑफ द माइंड चलेंगे तो आप चीजों का बेहतर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और तब भी आप सरवाइव कर सकते हैं। सो सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि आप ये सोचें कि हमें लोगों को साथ में लेके कैसे चलना है मुश्किल वक्त में, क्योंकि अच्छे वक्त में फिर वही होगा जब आपको जरूरत होगी फिर आप अनाप शनाप पैसे देके लोगों को हायर करेंगे। ये हायर और फायर वाली जो स्ट्रेटेजी है मुझे लगता है उसे थोड़ा सा रिकंसिडर करने की जरूरत है सबको। प्रकाश, सॉरी शेखर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। I couldn't hear you. I think we can balance economy and value, and the values generally determine a long-term behavior solution of the society for us, is what I think we get from you. Yes. I come to the next part for us from economy, I think, to COVID. COVID-19 has been criticized across as something which has resulted into challenges in economy, changing the government policy, which is not to the very levels, having a lot of money being thrown, I think a lot of deficits being coming in. But I think it also has its positive sides, and a few things from you on, I think, how do you see COVID on both the sides, and also a lot from the value system, I think, which we all have. A few people did tell me that I think the mask which we have is
is 70% Muhpatti. So I think that's where I think it comes from. No, they are wrong actually. Those who say that it is 70% Muhpatti, it is 100, more than 100% Muhpatti, undoubtedly. मतलब ये चीजें हैं जो कई बार हम ये हमारी भी प्रॉब्लम है शेखर जी, और हमारे शायद पूर्वजों की भी, जिन्होंने हमें ये तो बताया कि मोमबत्ती लगानी चाहिए, लेकिन ये नहीं समझाया कि क्यों लगानी चाहिए। और अगर शायद ये हमें पता होता तो हम इसे बहुत स्ट्रांगली और लोगों को बता पाते हैं। देखिए, जैन धर्म में ऑलमोस्ट वो सारी चीजें हैं साइंटिफिकली प्रूवन जो हम आज फॉलो कर रहे हैं। रात को नहीं खाना, अपने मतलब आप भले आप एक्सरसाइज ना करें, भले ना घूमें, अगर खाली आपका रात का खाना सूर्यास्त के पहले हो गया, तब भी आपकी हेल्थ का आधा काम हो गया। ये सारी चीजें हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। मुंहपत्ती की जरूरत कभी न कभी किसी न किसी तरीके से ऐसे पड़ी होगी, आज हमें तो याद नहीं कब शुरू हुई, कैसे हुई, लेकिन आज वो कितनी सबसे ज्यादा सिर्फ जैन लोग नहीं लगा रहे हैं, दुनिया में हर आदमी लगा रहा है। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि जैन धर्म में जो पुराने हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो कंप्लीटली साइंटिफिक थे। एनीवे, लेकिन जो चीजें कोरोना के वक्त हमने समझी है, फर्ज करें कि ये तो हमने जिंदगी में अपनी जिंदगी में पहली बार, और आई होप कि आखिरी बार ऐसा देखा है जो कुछ हुआ है। हम हमारी जिंदगी में क्या इतिहास में पहली और आखिरी बार हुआ है शायद। अगर साल पहले या कुछ महीनों पहले भी अगर हम किसी को बोलते हैं कि एक वक्त ऐसा आ सकता है कि आप किसी एक बीमारी की वजह से पूरी अपने घर में कैद हैं 2-3 महीने के लिए, एक कुछ ऐसे लिखिए उसमें क्या अच्छी बातें होंगी, क्या खराब बातें हैं। We couldn't visualize the situation and could have written something what we did actually. So as far as corona is concerned, see, what we understood is, I mean, ऊपर वाले के सामने हम बहुत छोटे हैं। अगर पूरी दुनिया में कोरोना के वायरस ने जितने लोगों को परेशान किया, 70-80-90 लाख लोग जो हैं, और उस वायरस की अगर जो मैंने सुना पढ़ा है एक आर्टिकल के, वजन 1 ग्राम से भी कम है। अगर 1 ग्राम से कम वजन का वायरस पूरी दुनिया को स्टैंड स्टिल पे ला सकता है, सारे सबको खड़ा कर दे इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के जमाने में, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि आप कुदरत के सामने एक लिमिट से ज्यादा ताकतवर है नहीं। आपको अल्टीमेटली सोचना पड़ा है। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी चीजें कोरोना हमें ऐसे देखा कि देखिए इसके पॉजिटिव्स ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि 2-3 महीने में तो कोरोना खत्म हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा। ये तो लाइफ लॉन्ग रहने वाला नहीं है, और ग्रेजुअली हमें पता है कि हम इससे बाहर भी निकल जाएंगे। लेकिन इससे जो लेसन हमें मिल रहे हैं, जो लर्निंग्स हमें मिल रही हैं, ये लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहेगी। कुछ लर्निंग्स की मैं बात करना चाहता हूँ। पहली चीज, नो डाउट हम तो हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में वी हैव वैल्यूज अबाउट आवर फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड एवरीवन, so we don't need that kind of teaching, but that principle is well understood by people across globe. जिन लोगों को मदर्स डे, फादर्स डे, फैमिली डे, ये डे वो डे मनाना पड़ता है, हमें कभी नहीं मनाना पड़ा आज तक, क्योंकि हम तो हमारे पेरेंट्स के बगैर या ग्रैंड पेरेंट्स के बगैर या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे बच्चों के बगैर रह नहीं सकते। सो सिंपल चीज ये कि हमें कभी वो जरूरत ही महसूस नहीं हुई कि इस तरह के कोई दिन होने चाहिए। करेक्ट, हमारे लिए हर रोज फैमिली डे होता है। लेकिन पॉइंट ये कि एक बार फिर से जब हम आंख बंद करके हमें हर चीज वेस्टर्न कंट्रीज की अच्छी लगती है, तब हमें ये इस कोरोना ने ये समझाया कि हमारी जो वैल्यूज है वो सही है। इस समय सबसे ज्यादा, यू वोंट बिलीव, आई मीन यू कैन आस्क सो मेनी फ्रेंड्स इन यूएस और समवेयर देयर, आई मीन people, husband is leaving wife or wife is leaving husband or son is leaving father due to, I mean, fear of corona, that if I stay with him or her then probably I get infected. That kind of insecurity within your family member, where I'll tell you, in my office, one 23-year-old guy, he got infected by corona, and recently he lost his father a year back or something like it. He stays with his mother, sister and grandfather in one bedroom hall kitchen. They have only one washroom. Okay, and so I said that better you I make some arrangements for you. आप 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाइए, पर ऐसी जगह में कोई होटल में या अच्छे हॉस्पिटल में करवा देता हूँ। Can you believe his mother and grandfather were not ready? हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, सर आप इसको है ना कुछ भी करके हमारे घर में ही रहने दो, हम पूरा ध्यान रखेंगे। मैं बोला भाई आपके एक ही वॉशरूम है, इन्फेक्शन का खतरा ये सब है। So this is the kind of values we have about our family members. To the risk of to the extent that you have risk of your own lives, still you want your family members to with you. So this is the biggest lesson what we learned, that family first,
अल्टीमेटली व्हाट्सएप, ट्विटर, सोशल मीडिया, फेसबुक, ये सब है ना कहने के लिए अच्छे कि हाँ भी मेरे 2 लाख फॉलोअर हो गए, 5 लाख हो गए, 3 लाख हो गए, और अगर मैं एक फोटो डाल दूं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और उसमें 50, 100, 200, 500, 1000 लाइक आ जाए, बढ़िया लगेगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं बीमार हूँ तो मेरी सेवा या तो मेरे बेटे बेटी करेंगे, या मेरी वाइफ करेगी, या मेरे भाई बहन करेंगे। सो हमें एक ये कोरोना ने बहुत अच्छे से सिखा दिया कि अल्टीमेटली आपकी फैमिली ही आपके काम आएगी, पहली बात। दूसरी चीज जो, ये तो इंटरनल हुई, एक्सटर्नल जो कोरोना से हमने सीखा है वो सबसे बड़ी चीज है कि टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करें। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि आप शेखर जी बिलीव नहीं करेंगे, मैंने इतने कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वेबिनार्स ये सब कर डाले हैं इन दिनों में, इतने इंटरव्यूज कर डाले हैं, इतने सारे फिल्म स्टार्स या कोई भी बड़े लोग जो वैसे पकड़ में नहीं आते हैं, अब घर पे फ्री बैठे हैं आराम से, तो ना आना है ना जाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आधा घंटे में फटाफट इंटरव्यू हो गया, कनेक्ट किया। सो टेक्नोलॉजी और एक और चीज जो सीखी हमने, अब मैं आई वाज रियली सरप्राइज एंड वेरी हैप्पी टू सी तात्या साहब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अच्छे से हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। आपकी एज में अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए इतने ओपन माइंडेड है, ये हम सबके लिए लेसन है, क्योंकि जनरली होता ये है कि हमें ये लगता है कि अरे टेक्नोलॉजी बड़ा मुश्किल काम है और बड़ा डर लगता है, एक मोबाइल अगर आपको चेंज करना हो तो बड़ी तकलीफ का काम है। लेकिन पॉइंट ये कि एक बार जब तक आप इस्तेमाल नहीं करते तब तक डर लगता है, जब आप इस्तेमाल करने लगते हैं तो उसके बाद आपकी समस्या सारी खत्म हो जाती है। तो ये दूसरी चीज है जो हमने सीखी। तीसरी चीज जो मैंने बिजनेसेस के एंगल से बहुत स्ट्रांगली देखी है वो ये है कि टेक्नोलॉजी का यूज करने से आपके लिए कॉस्ट सेविंग का एक बहुत 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 बड़ा रास्ता खुल रहा है। बिकॉज ट्रेडिशनली हम जो कॉस्ट सेविंग करने के जो रास्ते ढूंढते थे वो बहुत अलग हैं और वो अच्छे नहीं है। लेकिन अगर आप समझिए, अगर मैं मेरी आज मैं आपको बताऊं शेखर जी, मेरी 95% से ज्यादा टीम मेरी घर से काम कर रही है। मेरी 8-9 लोग मेरे मॉर्निंग शिफ्ट में और 6 या 7 लोग इवनिंग शिफ्ट में काम कर रहे हैं ऑफिस से, बाकी सारे के सारे लोग घर से काम कर रहे हैं। आप सोचिए, हम लेस देन 5% टीम के साथ अगर हम काम कर सकते हैं तो इसका मतलब क्लियर कट है। और अच्छा, सबसे बड़ी बात है प्रोडक्टिविटी बहुत आ रही है। यू वोंट बिलीव इन लास्ट 6 वीक्स वी बिकेम नंबर 1 एक्चुअली ड्यूरिंग कोरोना टाइम। आवर टीआरपी शॉट अप लाइक एनीथिंग। ऑफ कोर्स टू सम एक्सटेंट यू कैन से कंटेंट वगैरह ठीक है, ये वो है, but you have such motivated and highly charged team which is working from home, right? आप बॉम्बे में सबसे बड़ा आपके लिए पॉजिटिव क्या है? अगर आपको ट्रैवल नहीं करना है और आपके दिन के 4-5 घंटे 3 घंटे जो भी बच जाए, इससे बड़ी चीज हो नहीं सकती। सो स्ट्रेस लेवल इज रिड्यूस टू ग्रेट एक्सटेंट, योर ट्रैवलिंग टाइम इज रिड्यूस, हेल्थ इश्यूज कम हो गए, फालतू के खर्चे कम हो गए, आप फैमिली के साथ टाइम दे रहे हो तो वैसे ही खुश हो। तो एफिशिएंसी लेवल इतना इंप्रूव होकर आ रहा है विच इज रिजल्टिंग इनटू बेटर टीआरपीज। सो इसका मतलब ये है कि क्या हम आगे चल के, ठीक है आज 95% है, लेकिन चलिए 15%, 20%, 25% स्टाफ को ऐसा हो सकता है जो घर से काम करे। और अभी तक हम लोगों की आदत क्या थी, हम ट्रेडिशनल सोच वाले हैं, यार ये आदमी घर से काम कर रहा है ना, इसका मतलब हरामखोरी करेगा, कुछ करेगा नहीं, बैठा रहेगा। अगर आज हमने 2 महीने में ये देख लिया कि घर से काम करके बहुत अच्छा आपको आउटपुट मिल रहा है, तो क्यों ना कंटिन्यू करें। तो ये एक बड़ी चीज है कि आपके बहुत सारे, अच्छा आपके ऑफिस में खर्चे बचेंगे। आज मुंबई में सबसे बड़ी कॉस्टली चीज है आपकी जगह। अगर आपको बड़ा ऑफिस ही ना लेना पड़े, ना आपको रेंटल्स देने पड़ेंगे, ना खरीदने पड़ेंगे, वो आपकी सेविंग है। हो सकता है आपकी 50% सैलरी जो आप अपने स्टाफ को दे रहे हो वो सेविंग से आ जाए। सो दीज आर न्यू थिंग्स वी नीड टू थिंक अबाउट, and I'm sure that this corona will change the way we live, the way we work, and the way we will work going forward. तो बहुत सारे बढ़िया चेंजेस आने वाले हैं। तो मैं इसे ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझता हूँ। जो होना था वो तो हो गया, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन आगे के लिए जो हमें चीजें मिल रही है that is amazing actually. जी। No, I totally agree, and I can't I think agree more with very similarly. I think working from home, being more efficient, and trying to have an output which is significantly higher than even if when we are working in office. Breaking all the myths that I think when you work from office you work, when you work from home you don't work. I think Corona actually broke each of those myths quite well.
So I think a good takeaway of family and technology, I think two critical takeaways which come from the entire part. And if one were to see the quantum physics and the way the advancement on quantum physics is, it is a lot on, I think, Jain Darshan, and I think that's where it is moving in. The way the particle moves, the way the Lord Mahavira explained Jeev, Ajeev, and I think the quantum physics actually takes the same thing into account. Corona is a classic example where I think the solutions can be found over there. Yes. Government is also, I think, were they forthright in coming and thinking about a few of these things and taking policies? Example, cleanliness, trying to do a few things, preparing grounds for ethical conduct, wanting the society to be a bit more mature. We have seen some transformation in last 3 to 4 years, and at times more on the philosophy. I generally don't call as a religion, but as a philosophy of be truthful. So I think file your returns online, file your returns on Yes. time, pay taxes on time. I think have the entire security aspect and the cleanliness aspect. So I think have a few things developed. So I think some thought on that in terms of the philosophy which comes from Jainism, and something I think which you see happening on the government side and the policies of the government. See, there are two things. One, I mean, every time this question almost comes every day. What government is doing for us. I put things into little different perspective. मैं कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. बिल्कुल करना चाहिए, बहुत कुछ करना चाहिए, और हम सरकार चुनते हैं इसलिए, बनाते हैं इसलिए कि वो हमारे लिए बहुत कुछ करे. बट एक चीज मुझे बताएं कि क्या किसी को फॉरगेट, आई मीन अपार्ट फ्रॉम चाइना के भी मुझे नहीं मालूम, बट चाइना के अलावा किसी को पता था कि एक ऐसा वायरस है जो आएगा और सबको एक जगह खड़ा कर देगा? आई थिंक नोबडी न्यू इट, राइट. ऐसी सिचुएशन में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तो हमारा नसीब बहुत अच्छा है कि सबसे लास्ट में इंडिया में आया, राइट. मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो अगर सोचिए चाइना से पहले, तिब्बत से होके पहले इंडिया में आता, और इंडिया से हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान सबको एक्सपोर्ट करते हुए नेपाल से फिर आगे भेजते, और तब तक लास्ट में अगर अमेरिका में पहुंचता तो अमेरिका की सिचुएशन अलग होती. हमारे पास यहाँ पहले आया तो हमने कम से कम दूसरों की गलतियों से सीखा है कि जो गलती स्पेन, इटली, ईरान या फिर अमेरिका ने किए या यूके ने किए वो हम ना करें. सो will you not give a benefit of doubt to the government that they are also experiencing such things first time in life, right? So if something comes up first time in life, then you may handle it very well, you may not handle it that well, okay? लेकिन कोशिश और आपका इंटेंशन सही है क्या? अब ऐसी सिचुएशन में हम कई बार हम सोचते हैं कि हमें भी बड़ा डेवलप कंट्री होना चाहिए, अमेरिका की तरह, जापान की तरह, लेकिन क्या हम इस तरह की सिचुएशन में जो जापान के सिटीजन्स हैं उनकी तरह सोचते हैं क्या, या इवन चाइना के सिटीजन्स हैं उनकी तरह सोचते हैं क्या? करेक्ट. इस वक्त हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी है या शायद ज्यादा है जितनी सरकार की है. अगर आप सोचिए, अगर सरकार काम नहीं कर रही होती, अगर एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रहा होता, तो कोरोना के लोगों का, जो पेशेंट्स, उनका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, साफ सफाई कैसे हो रही है, सैनिटाइजेशन कैसे हो रहा है, तो ये सारी चीजें हो रही हैं. अब आप सोचिए, अगर मेरे घर के पास में एक कोई ऐसी बिल्डिंग है जिससे क्वारंटाइन सेंटर बनाते हैं, तो पूरे इलाके के लोग जाकर वहाँ पर बीएमसी के सामने बात करने को तैयार रहता है, हमारे यहाँ बना रहे हो, हमें रिस्क है, हमारी बिल्डिंग के पास में आप बना रहे हो. सो हम लोगों की फिलोसफी में ये नहीं है कि हम सिर्फ हमारा सोचें, हमारी फिलोसफी में ये कि हम सबका सोचें, और ये सबका सोचने का वक्त है कि सिर्फ मैं ये ना सोचूं कि सरकार मेरे लिए क्या कर रही है. ऑफकोर्स सरकार को जो करना है वो सरकार को सोचना भी चाहिए, करना चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार इसका मतलब है कि अपनी जिम्मेदारी से भाग जाए, लेकिन इस टफ टाइम में एज एन इंडिविजुअल मैं क्या कर सकता हूँ अपने परिवार के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, और अपने जिस इलाके में या जिस देश में मैं रह रहा हूँ, क्या उसके लिए मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे कि देश को, सरकार को मदद मिले. पॉइंट नंबर 1. बहुत सारे लोग, अगर समझिए लोगों को सैनिटाइजर की जरूरत है, मास्क की जरूरत है, अनाप शनाप दामों में बेचते हैं, क्या मैं ये कर सकता हूँ कि और उल्टे कम दाम में बेचूं? क्या मैं उससे ज्यादा आसानी से लोगों, या इस बार मैं पैसा ना कमाऊं, मार्जिन ना कमाऊं? बहुत सारी चीजें जो हम कर सकते हैं. सो दिस इज टाइम
वी शुड आस्क, मैं सरकार के लिए, देश के लिए क्या कर सकता हूँ, बजाय सरकार मेरे लिए क्या कर सकती है। अगर हम ये थॉट प्रोसेस थोड़ी सी चेंज करेंगे तो जो कुछ मिल रहा है वो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सेकेंडली, इफ यू कंपेयर विद यूएस एंड एवरीवन अदर कंट्रीज, देखिए एक चीज समझिए, हम अमेरिका नहीं है, वहां पर वो अनलिमिटेड बॉन्ड बाइंग, एसेट बाइंग करे, डॉलर छापते जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ आप बोल दीजिए, अगर कल आके सरकार बोल दे कि बस हम 5 लाख करोड़ के हम बॉन्ड्स खरीदेंगे, आपका रुपया 80 के लेवल पे चले जाएगा, करेंसी आपकी क्रेक हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट्स आपकी कहाँ चली जाएगी। सो वी डोंट हैव दैट लग्जरी विद अस वेयर वी कैन गो आउट ऑफ द वे एंड से समथिंग। सो हमारे लिए टफ टाइम है। हमें कुछ लोगों के लिए ये बड़ा इजी है कि मेरे पैर जितने लंबे हैं मैं चादर उतनी बड़ी करूंगा। हमारे लिए ये मजबूरी है कि जितनी चादर है हमें उसी में सेट होना है। अभी हमारे पास वो लग्जरी नहीं कि हम फैल के सोएं। सो पॉइंट इज, इंडिया इज एट अ सिचुएशन वेयर वी नीड टू बैलेंस आवर एक्सपेक्टेशन विद लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंट, राइट। हमारे पास उतने पैसे नहीं है फ्रेंकली, और हम उतने बुरे भी नहीं जितना पाकिस्तान है कि हम 5-7 बिलियन डॉलर के रिजर्व पे बैठेंगे, 7 दिन के बाद खाने के पैसे नहीं है। आज हमारे पास 400-450 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं, सो वी आर वेल सेटल्ड, बट दैट मनी ओनली गिव्स यू कंफर्ट। आज अगर कोरोना के वक्त हम वेबिनार कर रहे हैं, हमारा पर्पस ये नहीं कि आज कैसे फैमिली का या हमारे लोगों का पेट भरेंगे, हम वो नहीं सोचे तो उसकी वजह ये कि हमारे पास कुछ सेविंग्स ऐसी पड़ी हुई है, हमने कुछ पहले कमाया है। सो हमारे गवर्नमेंट के पास भी 400-450 बिलियन डॉलर पड़े हैं, तो उन्होंने पहले कमा के इसी दिन के लिए रखे ताकि वो निश्चिंत होकर ये कह सके हाँ एक भी आदमी कोरोना में भूख से नहीं मरेगा। So point is simple, that we need to ask ourselves how we can contribute to the country, and the best way to contribute to the country is two way. One, as far as your business and profession is concerned, as you rightly said, do what you are supposed to do, pay at right point in time and everything. And in tough time, if you don't get your refunds or something, some hardships are there, please try to ignore. And on personal front, whatever best you can do, people around you, your mates or your drivers or your watchmen or anyone else, wherever you can do something for them, that would be great to the mankind, great service to the mankind. So I think हम personally और professional level पर दोनों चीज करेंगे, so that would help in maintaining people in society at a certain level, and it would improve our economic activities also. तो उसी से हम जल्दी से वापस ट्रैक पे भी आ पाएंगे। जी शेखर। So I think it is comes back to the Acharam Paramo Dharma, which is Achari Shresht Dharma, and what we are supposed to do. I think it is a mirror for us, for an individual, to actually see, I think, what all we can. And one of the things which has been given by us in the philosophy is, I call by Lord Mahavira, that a different way of Alochna ya Aloch, I think, is what is being told by us, and we try to probably introspect and see, I think, what all we can do. But before that, I think I would even like to know that based on the religion, philosophy, and what you have done, how it has transformed your life and how it has made you such a successful professional across, especially the Jain philosophy. एक चीज है ना शेखर जी, ये बड़ा, can you see me? Yes, I can. Okay, my screen is lost. Okay, no way. Okay, so एक चीज जो हमारे साथ में, सबके साथ में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, हमने कुछ तो शायद पिछले जन्म में अच्छे काम किए होंगे कि हमें हिंदुस्तान में पैदा होने का मौका मिला, हमें जैन धर्म में पैदा होने का मौका मिला, हमें ऐसा परिवार, ऐसे संस्कार मिले हैं कि हमारे लिए आधी से ज्यादा चीजें आसान हो जाती है। अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं या किसी को जॉब पर रख रहे हैं और आपको पता होता है कि जैन है वो, तो आपके दिमाग में अचानक से एक सर्टेन लेवल ऑफ कमिटमेंट, वैल्यूज, ये चीजें अपने आप दिमाग में आ जाती है। अच्छा जैन है ना, इसका मतलब ये इंटेलिजेंट है, इसका मतलब ये चोरी चकारी नहीं करता है, इसका मतलब ये कि ये नॉन वेज, टीटोटल, फालतू की चीजें नहीं होंगी, इसकी कोई ऐसी बुराइयां नहीं होगी, इसका मतलब ये कि ये अच्छे लोगों के साथ उठता बैठता होगा, इसका मतलब ये है कि ये बाय नेचर टाइमली अगर आप लोन देंगे, उससे डील करेंगे तो वो फेयर होगा, मोर देन फेयर होगा। ये सर्टेन चीजें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आती है।
अगर किसी और के साथ में आपको उन चीजों को 100% परखना है तो जैन होगा तो आप सोचेंगे ठीक है यार 60-70% भी देख ली तो बहुत है, बाकी तो 30-40% डिस्काउंट आपको है ना जैन होने का मिल जाता है एक तरह से। क्या आपको मालूम है कि ये एक सर्टेन वैल्यूज वाला आदमी है। So this is one of the biggest advantage where people have a lot of comfort. And secondly, another thing, they know that ये मेहनत करके खाने वाले लोग हैं। आपको कहीं शायद एक भी ऐसा जैन भीख मांगते हुए नहीं दिखेगा, कैसा भी काम करेगा लेकिन मेहनत से काम करेगा। और उनको ये पता है कि आप जो उनको देंगे उससे ज्यादा वो रिटर्न करने में बिलीव करता है। सो दीज आर biggest advantage, and I have personally seen them actually. I have personally seen them while dealing with people. They feel मैं जब जर्नलिज्म करता हूँ, मैं जब एंकरिंग करता हूँ, people have certain expectations कि अनिल सिंह भी जैन है तो जरूर है ना ये सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे, वो मान के चलते हैं। ये सर्टेन एजम्पशन उनका है। और सबसे बड़ी चीज ये कि आज के जमाने में जहाँ वो न्यूट्रल जर्नलिज्म जैसी कोई चीज ही नहीं रही, आप एक तरफ हैं या दूसरी तरफ हैं, वैसे वक्त में न्यूट्रल होने में आप मतलब है ना आप दोनों के अगेंस्ट हैं। ये सबसे बड़ी नहीं तो आप एक फेवर लेते तो एक ही के अगेंस्ट में, अगर आप न्यूट्रल है तो आपको दोनों ही पसंद नहीं करेंगे। सो ऐसे समय में आपकी वैल्यूज को इंटैक्ट रख के आप काम करते हैं तो उसका जो अप्रिसिएशन मिलता है और जो लोग उसके बाद आपको कहते हैं कि हाँ आप ठीक कर रहे हैं, वो सबसे satisfying. So, not only in jobs, while dealing with people, I was into stock market related jobs, into debt, equity, and when I used to deal with people, वो एक बहुत एडवांटेज रहता था। और स्पेशली फिर हमारे फील्ड भी ऐसे हैं कि जहाँ पर वैसे भी जैन लोगों से ज्यादा काम पड़ता है तो ऑटोमेटिकली कंफर्ट हो ही जाता है। और तीसरी बात, अब जब यहाँ हैं तो एक कई बार होता है कि कुछ चीजें हम गलत भी कर देते हैं प्रोफेशन में। जरूरी नहीं कि अब मैं जर्नलिस्ट हूँ तो सारी चीजें सही करता हूँ। कई बार कोई चीज का एनालिसिस गलत हो गया, किसी चीज का एडिटोरियल स्टैंड गलत हो गया, फिर भी लोग इसलिए माफ कर देते हैं कि वो जानते हैं ये इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं, अनइंटेंशनली हो गया होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे डे टू डे रूटीन में जैन धर्म का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहीं हुआ, जिसका मुझे सबसे ज्यादा फायदा तो नहीं कहूंगा लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जिससे मुझे बहुत सुकून मिलता है, वो ये कि ये जो हमारी संवत्सरी पर क्षमापना वाला सिस्टम है ये होता ही है नहीं। बाकी तो सब मैं बदला लेके रहूंगा टैक्स वाला मामला है, माफ भी मांगने का और माफ करने वाला सिस्टम है ही नहीं। लेकिन ये जो वैल्यूज हमारे हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं एनालिसिस करता हूँ और जब मैं कई बार एनालिसिस का गलत होता हूँ तो मैं आई एम द ओनली पर्सन हूँ ऑनर से कि यार ये मेरा कॉल गलत हो गया, मेरा मार्केट पे आज का एनालिसिस गलत था, या ये स्टॉक मैंने रिकमेंड किया इसका स्टॉक लॉस ट्रिगर हो गया, या ये कॉल गलत है, आई एम सो सॉरी दैट यू हैव लॉस्ट सम मनी, प्लीज गेट आउट, आई विल ट्राई टू मेक अप इन सम अदर ट्रेड्स और समथिंग लाइक दैट। एंड पीपल रियली फॉरगिव मी। कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं अरे सर अभी हाल ही में 1 हफ्ते पहले की बात थी और कोई एक ट्रेड मेरे रिकमेंड करते ही बड़ा गलत हो गया 2-3 मिनट में, एंड आई वाज सो अपसेट एंड आई वाज सो ओवरवेल्म्ड टू सी कम से कम 500 मैसेज मेरे ट्विटर पे ऐसा है कि अरे सर आप इतना मूड क्यों खराब करके बैठा है। हो जाता है कभी कई बार सचिन भी 0 पे आउट हो जाता है जाके, इसका मतलब ये थोड़ी खेलना छोड़ देगा। तो दैट काइंड ऑफ कंफर्ट यू गेट फ्रॉम योर व्यूअर्स, एंड वो तभी आता है जब आप अपनी गलती स्वीकार करते हो। गलती स्वीकार करके उनको बोलते हो कि नहीं यार मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो। और ये हमारे रिलीजन से आता है। अब मुझे नहीं लगता कि अगर मैं जैन के अलावा किसी और रिलीजन में होता तो मैं शायद ऐसे खुल्लम खुल्ला लोगों को बोलता हाँ मेरे, नहीं तो वो एरोगेंस ही अलग होती है। जर्नलिस्ट लोग तो हम तो सब दुनिया में अपने आप को सबसे सुपर मानते हैं कि हमारे से ऊपर कौन है, हम तो किसी को भी क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी के लिए भी कुछ भी कह सकते हैं। सो लेकिन वो एरोगेंस छोड़ के जब आप एक्सेप्ट करते हैं ह्यूमिलिटी के साथ कि नहीं है गलत हो गया, तो ये सबसे बड़ा कंफर्ट आपको अपने धर्म से मिलता है जो हमने बचपन से सीखा है, और वो बहुत काम आ रहा है, एक्चुअली बहुत काम आ रहा है। हमारे प्रोफेशन में तो ऐसा है कि गलतियां रोज होती है, रोज गलतियां होती है। और आप बिलीव नहीं करेंगे शेखर जी, हर एक संवत्सरी पर मैं चैनल पे जिस दिन शो शुरू करता हूँ उस दिन मैं क्षमा याचना करता हूँ सबसे, हमारे दर्शकों से पूरे 1 साल के लिए। तो ये वो 1 साल के लिए मेरा है ना जो अकाउंट है वो मेरे दर्शकों के साथ भी चलता है, और उस दिन मैं सेटल करता हूँ। और ये बड़ा कंफर्ट है, इसलिए लोग है ना दिल से हमारे साथ जुड़ते हैं, और ये हम पूरी तरह से सिर्फ जैन धर्म से आया है। जी
I think an excellent learning if one were to see it, especially the value system is what you spoke of. Absolutely. Whether it is truthfulness, whether it is being very clear, the confidence and the spirituality, I think, which generally builds in because of you being brought up in such an environment. Yes, family and community becomes a very important part, but in our profession as well, I think it helps significantly for us. A couple of viewers, I think, who asked me a question. I think the first question from a viewer generally comes in is simple. Sir, how is the market looking? See, जो मार्केट में मार्च में हुआ शायद वापस नहीं होगा, अप्रैल में हुआ वो पक्का ही वापस नहीं होगा. March was overreaction, April was overreaction, May is little bit, realistic reaction. But my point is simple. See, there are two things. And of late, I've been extremely vocal about my views on the market. In March, we have strongly told, nahi lena hai, nahi fasna hai, exit everything. And that was when Nifty was around 11,800, 12,000 levels. और ये 23-24 फरवरी से हम लगातार ये बोल रहे थे कि मार्च का महीना खून के आंसू वाला होगा, ये सब टाइम, और that happened also. April was extremely good month, and again the call was that sell in May and go away, and which has been proved right till mid May actually कि ठीक है 800-900 पॉइंट निफ्टी वहाँ से नीचे. My point is simple. Each and every rally should be an opportunity to exit. ये मार्केट अभी इन्वेस्ट करने लायक है नहीं. मैं यहाँ से और नीचे के लेवल्स देखता हूँ. प्रोबेबली हो सकता है जो हमने 23 मार्च 24 मार्च को जो लोज बनाए हैं 7,500-600 के, शायद वहाँ आए, वहाँ नहीं आए तो 8,000-8,200 तक आए, या हो सकता है उससे नीचे भी चले जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है. बट पॉइंट इज there is nothing which excites you to invest into market at this point in time, because जो रैली बनी है अप्रैल में इस उम्मीद में बनी कि लॉकडाउन खुलेगा, लाइफ वुड बी बैक ऑन ट्रैक. इफ यू रिमेम्बर जब फरवरी में बजट आया था, बजट के वक्त भी लोग ऑटो इंडस्ट्री के लिए स्क्रैपेज पॉलिसी चाहिए, रियल एस्टेट के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज चाहिए, कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए कुछ और दीजिए. जब आप लाइफ टाइम हाइपर मार्केट पर ट्रेड कर रहे थे 12,000 पर, तब भी आपको ये सब कुछ चाहिए था. और अब कोरोना है, तो कोरोना के बाद मैं वही कहता हूँ कि वो ये जो अभी जो तेजी बन रही है, ये इस एक्सपेक्टेशन में बन रही है कि लाइफ सब कुछ ठीक हो जाए. ये ना एक्सपेक्टेशन वैसी जैसे हम जनरली हम जैन लोग मोस्टली हम लोग अरेंज मैरिज करते हैं, हमारी लव मैरिज नहीं होती, कम होती है, अब आजकल की जनरेशन में होने लगी. और जब हमारी वो एंगेजमेंट होती है, और एंगेजमेंट से शादी के बीच का जो पीरियड है ना, वो हमारी लाइफ का सबसे बढ़िया पीरियड होता है. उसमें हमको सब कुछ अच्छा लगता है. मतलब ये ड्रीम पीरियड है कि आप रोज बात कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, बस इंतजार कर रहे हैं शादी होगी. ये भी अपनी अप्रैल का महीना जो चलाने मार्केट का वैसा ही ड्रीम पीरियड की मार्केट की एक तरह से एंगेजमेंट वाले से शादी के बीच का पीरियड है कि कोरोना चले जाएगा और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, लाइफ बैक टू नॉर्मल होगा, हम बाहर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, बिजनेस करेंगे, सब कुछ करेंगे, जॉब करेंगे. फिर होता है कि जब आपकी शादी होती है, यानी कि जिस दिन कोरोना का जाना होगा या कोरोना की टैबलेट मिलना है या दवा मिलना है, वैक्सीन मिलना होगा, उस दिन भी और खुशी होती है, अरे वाह अब तो सब ठीक है, शादी हो रही है ना. बस फिर आपका हनीमून पीरियड होता है 5-15 दिन का, तब आप और लाइफ एंजॉय करते हैं, लगता है ये तो बेस्ट पीरियड था. उसके बाद वो पीरियड तब जब हमें दवा मिलेगी, दवा मिलने के बाद शायद कुछ दिन और हम बहुत एंजॉय करेंगे कि अब तो बस सब कुछ ठीक है, कोरोना आया गया, चला खत्म हो गया, इतिहास हो गया. उसके बाद जब आप है ना 2 हफ्ते बाद जब ऑफिस जाना शुरू करते हैं, या फिर आप अपने बिजनेस में या प्रोफेशन में फिर से जुड़ते हैं, या काम के लिए जब पिताजी बोलते हैं आओ बेटा आप दुकान पे बैठो, तब आपको आटे दाल का भाव पता चलता है, हार्श रियलिटी से आपका सामना होता है. राइट. सिमिलर सिचुएशन ये होगी कि जिस दिन लॉकडाउन खुलने के बाद जब आप अपने ऑफिस जाएंगे, आपको पता है कि आपके 10 में से 4 स्टाफ नहीं आ रहे हैं, या आप फैक्ट्री चला रहे हैं तो आपके फैक्ट्री के मजदूर जो है वापस आने को तैयार नहीं है, जिनके पैसे लेने हैं वो आपके सर पर आकर डांस कर रहे हैं, जिनको देने हैं वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं, आप फैक्ट्री चलाएं या पैसे की उगाई करने जाएं. मतलब इतनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, वो लाइफ की जो आपकी रियलिटी होती है वो आपको बाद में पता चलेगी. तो माय पॉइंट इज सिंपल, एट दिस पॉइंट इन टाइम हम लोग वो सोच ही नहीं रहे कि कोरोना के बाद हमें क्या दिखेगा. हम मिस मार्केट ये जब सोचेंगे, जब मन होगा तब देखेंगे. अभी आज तो हमें ये लग रहा है कि बस कोरोना जाएगा, लाइफ ठीक हो जाएगी.
सब कुछ है और इसलिए मार्केट चल रहा है, सिंपल है। लेकिन जब आप वाकई में बिजनेस को वापस देखेंगे तो मुझे लगता है कि इट वुड बी वेरी वेरी टफ टाइम गोइंग फॉरवर्ड। सो एक वो रीजन से मैं बड़ा बेरिश हूँ। मुझे लगता है कि 9,800-900 भी जिस दिन 30 अप्रैल को था तो मैंने बड़ा बोल खोल दिया कि एंड इनफैक्ट शेखर जी में बता रहा था, तो मैंने खुद अपने म्यूचुअल फंड रिडीम किए। मैंने ऑन एयर बोला भी कि मैं अपने रिडीम कर रहा हूँ, उसको करना है करे, ना करना है। सिंपल चीज़ है, 10,000 की निफ्टी पे अगर मुझे 11,000 की निफ्टी के लिए पैसा इन्वेस्ट रखना है कि 8-10% का रिटर्न मुझे मिलेगा, तो मैं 8-10% का रिटर्न मैं डेट में लेना प्रेफर करूंगा जहाँ मेरे रिस्क कम है। करेक्ट, 7-8% का मुझे डेट में मिल जाए तो मैं 10% का इक्विटी रिटर्न नहीं चाहता। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट इन फेवर ऑफ इक्विटी, एंड आई एम श्योर in this year, in 2020, market will give you one more good chance to enter at right level. So I wait for that. Keep cash handy. और अब वो रीजन क्या होगा वो मुझे नहीं पता, और कब होगा वो भी नहीं पता। लेकिन दो बड़ी रिस्क है। एक रिस्क नॉन है, वो इकोनॉमिक स्लोडाउन की है, और दूसरी रिस्क अननोन है जो अब थोड़ी थोड़ी नॉन हो रही है, और जो मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि कुछ न कुछ इस साल दुनिया में ऐसा होगा जो बहुत खराब होगा। ट्रम्प प्लस अदर्स वर्सेस चाइना, ये होना ही होना है, क्योंकि ट्रम्प छोड़ेगा नहीं चाइना को। इसलिए नहीं कि उन्होंने वायरस दिया इसलिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ 1 लाख मरे 2 लाख मरे, कोई इज इमोशनलेस, उनको फर्क भी नहीं पड़ता 2 लाख कम हो गए तो। उनको इसलिए लड़ना है बिकॉज दुनिया भर में आप देखिए सारे पॉलिटिशियंस एक जैसे होते हैं और सारी जनता एक जैसी होती है, कोई खास फर्क नहीं है। ऐसा नहीं कि अमेरिका में सारे समझदार लोग हमारे यहाँ ऐसे ही है, सब जगह एक ही तरह के लोग हैं, और सारे पॉलिटिशियंस उसका फायदा उठाते हैं। और हर एक पॉलिटिशियन का एक ही सबसे बड़ा टारगेट होता है जब वो इलेक्शन जीतता है, और इलेक्शन जीतने के बाद वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसका टारगेट पहले दिन यही है कि अगला इलेक्शन कैसे जीतूं, राइट। सो सेम वे ट्रम्प साहब को इलेक्शन जीतना है, और उस इलेक्शन जीतने के लिए वो किसी भी एक्सटेंट तक जाएंगे, और अमेरिका के उनको वोट चाहिए। सो आई एम श्योर ही विल डू समथिंग। अब करेंगे नहीं करेंगे तो कहेंगे तो जरूर। तो मुझे वो दो बड़ी रिस्क है जो लगती है, एक ग्लोबल और एक लोकल। और अगर और दूसरा एक और चीज क्या है शेखर जी की, तो ये है ना, ये चाइना है, ये कोई ईरान इराक तो है नहीं, या सीरिया तो है नहीं कि आपने 2 बम गिरा दिए और बोलेंगे हम इसका बदला जरूर लेंगे जी, आपको छोड़ेंगे नहीं, और 3 दिन बाद पता भी नहीं कि अमेरिका ने बम गिराया था, भूल ही जाते हैं वो लोग। तो वो लड़ नहीं सकते हैं। ये चाइना है, इसे लड़ना आता है, तो इसकी भी ताकत है। और ये लड़ाई कोई बम गिराने वाली नहीं होगी, ये इकोनॉमिक फ्रंट पर होगी। और इकोनॉमिक फ्रंट पर चाइना कितना डैमेज कर सकता है ये आप हम सब लोग अच्छे से जानते हैं। नहीं जानते तो दिखा देगा चाइना करके, सबको पता चल जाएगा कि कितना कर सकते हैं। सो आई एम श्योर दीस 2 थिंग्स आर बिगेस्ट रिस्क फॉर मार्केट टू गो। सो कीप योर कैश हैंडी। एक ही रिस्क है मुझे जो लगता है, जो मेरे व्यू पर मुझे रिस्क लगती है, जिसकी वजह से मैं गलत हो सकता हूँ। वो रिस्क ये है कि ग्लोबली लिक्विडिटी बहुत है। हमारे पास पैसे नहीं, इसका मतलब नहीं है कि दुनिया में नहीं है, बाकी जगह पैसे हैं और बहुत पैसे हैं। सो कई बार ये होता है कि लिक्विडिटी आपके मार्केट को तब तक गिरने नहीं देगी जब तक वो चाहे, और तब आप गलत कर सकते हैं। आपको लगता है कि यार वो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, अरे ये तो गिरता ही नहीं है मार्केट, अरे ये तो गिरता ही नहीं, बिकॉज हम क्या चाहते हैं, हमने जब बेचा है तो तुरंत गिर जाए, और हमने लिया तो अपने लिए वापस लेवल्स आने नहीं चाहिए, ऊपर ही जाना चाहिए। मार्केट डजंट ऑब्लाइज यू लाइक दिस। सो पॉइंट इज सिंपल, ओनली थिंग विच कैन प्रूव मी रॉन्ग इज लिक्विडिटी। इफ गेट लिक्विडिटी लाइक दिस, अमेरिका ने सबने टैप खोल रखे हैं, जिसको जितना ले जाना है ले जाइए डॉलर, जिसको जो कचरा बेच के जाना है फेड को बेच दीजिए, मुझे बेच दिए, तो ठीक है। लिक्विडिटी जब तक है तब तक ठीक है, लेकिन लिक्विडिटी से सेंटीमेंट चेंज होने में एक ही दिन का टाइम लगता है, एक दिन का नहीं, ओवरनाइट बस। तो वो ओवरनाइट किस दिन होगी वो पता नहीं, बट होगी जरूर, ये मेरा स्ट्रांगली मानना है जी। नहीं, thank you very much, and I think it has been quite frank and quite open discussion, and that is what I think I can call your free thoughts and free advice, or clear advice, and clear, totally confident thought is what makes I think a business is number one challenge. कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो मेरी फैमिली है, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, मैं मेरी लाइफ टाइम के सबसे लोएस्ट इक्विटी एक्सपोजर पे हूँ। Wow. So you can treat me as a biased person also, though I always give unbiased opinion, try to give unbiased opinion irrespective of what my position is. But I have almost redeemed my equity investment, almost, a very minuscule, I mean. Yeah, then that speaks, I think the words and actions speak over there. हाँ, तो 10% मेरा बचा होगा, बाकी मैं निकाल के कैश में बैठा हूँ, and I'm just see, एक और सिंपल चीज है, देखो
ये तो मैंने तो निकाला, बाद में पता चला कि वॉरेन बफेट साहब ने भी $125 बिलियन में से कुछ भी नहीं डाला। करेक्ट। आप सोचिए, अगर उनके हमारे पास तो कुछ लाख रुपए या कुछ हल्के से थोड़े बहुत पैसे होंगे, उसमें हम इतना कूदते हैं कि पैसा लगाना है, कहाँ लगाएं। जिस वॉरेन बफेट के पास $150-200 बिलियन है, $125-150 बिलियन है, उनका पेशेंस लेवल देखिए। एंड इफ द अमेरिकन मार्केट हैज फॉलन दैट मच एंड ही डिडंट इन्वेस्ट अ सिंगल पेनी, रादर ही हैज सोल्ड 6,000-7,000 करोड़ वर्थ शेयर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्लियर कट है कि अगर सबसे बड़े इन्वेस्टर्स ये सोच के बैठे हैं कि ये लेवल वो नहीं है जहाँ पैसा लगाना है। Of course, we had asked to invest when market was 7,500. I clearly told कि सबसे बड़ा इंस्टॉलमेंट आज जाना चाहिए 40%। लेकिन हमने जो मैंने पैसा लगवाया, मैंने 9,000 से 9,800 900 के रेंज में पूरा एग्जिट करवाया है हमारे व्यूअर्स को। और अभी मैं कंप्लीटली एक ही एडवाइस दे रहा हूँ, कैश पर रहिए, मौका देगा। No, thank you very much, sir. I think it has been quite a pleasure to have you over here. Thank you, and thank you very much. I know we understand your time and the entire time, I think, which we have set it. I think I'll hand it over to Anandji Chopra sahab, I think our executive president, I think for us to address with a few words. Anandji Chopra. धन्यवाद शेखर जी। आवाज आ रही है मेरी? जी 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 हाँ जी। सबसे पहले तो अनिल जी सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम सभी की तरफ से आप पधारे और अपने मन की बात कही, मैं ये कह सकता हूँ कि आज वो आपने कोई बिजनेस वाली बात नहीं की, लेकिन अपने मन की बात कही कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। अनिल जी, आपके और हमारे जो भी प्रोफेशनल बंधु आज जुड़े हुए हैं इस वेबिनार में, उनकी जानकारी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आचार्य श्री हीराचंद जी महाराज साहब के मार्गदर्शन में और हमारे जज साहब टाटिया साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनके दिशा निर्देशन में हमारा संघ और उसकी सहयोगी संस्थाएं मिलजुल करके बड़ा अच्छा काम कर रही हैं कि सबके अंदर नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों का बीजारोपण कर रही है। और हमें बड़ी खुशी है कि इस वर्ष हमारे आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज साहब जो युग पुरुष हुए हैं, उनका 100वां दीक्षा वर्ष है। और उस 100वें दीक्षा वर्ष में ये जैन रत्न फोरम ऑफ प्रोफेशनल्स का जो एक हमने शुरुआत की है, इट इज ए फेदर ऑन द कैप। और भला हो कोविड-19 का कि जो प्लानिंग हम थोड़े समय से कर रहे थे वो हो गई कि भाई ये एक फोरम का गठन भी हो गया और उसने काम करना भी शुरू कर दिया। आप जानते हैं थोड़ा जो आदमी प्रोफेशनल ज्यादा इन्वॉल्व होता है उसका समय थोड़ा धर्म के अंदर कम लगता है। तो हमारा एक विचार था कि जो लोग एक्टिव हैं, प्रोफेशनल्स हमारे एक्टिव हैं रिलीजियसली भी, तो हम एक क्यों नहीं फोरम बनाएं और जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं ऑफ एनी फील्ड, अराउंड 2 डजन फील्ड्स हैं, उन लोगों को हम संघ से जोड़ें, उनको धर्म में सक्रिय करें। हम कैसे उनमें नैतिक धार्मिक मूल्यों का बीजारोपण कर सकें, उनको संघ की एक्टिविटीज से कैसे जोड़ें और उनका जो वास्ट वेल्थ है नॉलेज का, उसको कैसे जैन समाज के लिए उपयोगी बनाएं, एज वेल एज क्या संघ उनको इस तरह से जोड़ करके उनको वो स्थान, वो मान, वो सम्मान समाज में नहीं देना चाहता है, देना चाहिए। और इसीलिए इस फोरम का हमने गठन किया और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस फोरम से जुड़ें, अपने आप को रजिस्टर करें और अपना पर्सनल डेटा दें विच इज रिक्वायर्ड रत्न संघ ऐप पे, ताकि हम उनसे निरंतर संपर्क में रह करके और आपस में जुड़े रह सकें। सिंघवी साहब, हमारा पहला प्रयास जो है वो लास्ट वीक में संडे को हुआ था, 10 तारीख को, 10 मई को, और उसमें नीलेश जी शाह आए थे, एमडी कोटक महिंद्रा एसेट बैंक, और उन्होंने भी जो उनका सब्जेक्ट था जैन फिलॉसफी और मार्केट इकोनॉमिक्स, उसमें भी उन्होंने धर्म से ऐसा जोड़ा। हमारे यहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। तो व्हाट इज सेड कि भाई दैट मीन्स वी शुड हैव ए राइट बिलीफ, वी शुड हैव राइट नॉलेज
एंड वी शुड हैव राइट कंडक्ट। एंड अगर हम इन तीन चीजों को हमारे बिजनेस में भी रखेंगे, हमारे वोकेशन में भी रखेंगे, तो विल बी some above others, I mean as a human being and as a professional also। तो एक उन्होंने बहुत अच्छा उसको सब्जेक्ट को डील किया एंड वी वर वेरी हैप्पी। और आज वी आर फॉर्चुनेट कि हमें आपका सानिध्य मिला है और आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई। सब्जेक्ट देख करके तो मेरे को लगा कि आप कैसे जैन धर्म से इसको जोड़ेंगे, बट मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा कि मार्केट के अंदर आपने कहा कि while dealing with money we must not forget the values। आपने ये भी कहा कि अर्थ नीति और धर्म नीति बिल्कुल अलग है, बट एक बनिया आदमी, एक बुद्धिमान आदमी दोनों का बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैसे नहीं ले सकता है। दैट वाज वंडरफुल। थर्ड, यू सेड कि भाई ये जो कोविड आया है इसमें 2 बड़े फायदे हुए हैं। एक तो 3 फायदे हुए हैं। एक तो ये कि जैन धर्म की जो हमारी क्रियाएं हैं, वे ऑफ लाइफ है, वो दैट हैज बीन नाउ वैलिडेटेड बाय वर्ल्ड। दुनिया के अंदर जैन फूड हम लोगों ने चलाया। आज किसी भी रेस्टोरेंट में, होटल में या फ्लाइट में जाएंगे जैन फूड मिलेगा। तो जैन वे ऑफ लाइफ भी जो है ये मेरे ख्याल से कोविड से प्रोपोगेट हो जाएगी। सेकेंडली, हमारी जो फैमिली है, दैट इज फैमिली इज फर्स्ट। अगर हमारी फैमिली हमारे साथ है तो हम वी आर स्ट्रांग। एंड थर्डली, आपने कहा कि एक्सटर्नल फैक्टर जो कोविड का हुआ है वो ये हुआ कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेल एज बाय एवरीबॉडी। तो ये एक बहुत बड़ा चीज आया है। वर्क फ्रॉम होम इज ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर which will become normal in times to come। And regarding government policy, you said that उसका मुकाबला करने के लिए सरकार की कोशिश व नियत अच्छी होनी चाहिए। हम ये नहीं सोचें कि सरकार क्या कर रही है, हम ये सोचें कि हमने क्या किया। एंड थर्डली, यू सेड कि expectations should match with the limitations। so I think आपने बड़े अच्छे तरीके से हमारे को सब्जेक्ट से और जैन फिलोसफी से बांध के रखा। वी आर फॉर्चुनेट टू हैव यू अमंगस्ट अस। एंड आपके जो विचार हैं, आपके जो थॉट्स हैं, उन्होंने हमें एक नई दिशा दी है सोचने के लिए, एक संबल दिया है कि हम आगे आने वाले समय को भी, क्योंकि कोरोना की अभी कोई दवाई निकली नहीं है, ये जाने वाला नहीं है। अब तो WHO और सब लोग कह रहे हैं कि ये रहने वाला है आपके साथ में। आपको कैसे रहना है, ये दैट यू हैव टू डिसाइड एज पर योर सोसाइटी एंड एज पर योर वर्क प्रोफाइल। सो लेट अस स्टार्ट लिविंग विद इट। एंड आई एम थैंकफुल टू यू एंड शेखर भाई ऑन बिहाफ ऑफ संघ दैट आपने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म शुरू किया है। ये आगे भी बढ़ता रहेगा और हर सप्ताह हमारे को नए नए वक्ताओं के, इतने विद्वान वक्ताओं के समाचार, उनके व्यूज सुनने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आनंद जी एंड थैंक यू एवरीवन। एक चीज यहाँ निवेदन करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं अपने जैन समाज से जुड़े कई सारे वेबिनार्स किए हैं, लेकिन पहला वेबिनार ऐसा है जो पूरी तरह से जैन धर्म पर और फिलोसॉफी पर बेस करके बाकी चीजों पर बात कर रहा है। तो मैं इसके लिए आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नहीं तो आज तक मैंने, हाँ बात होती है, लेकिन आपका बेस फिलोसॉफी और धर्म है, इकोनॉमी, बिजनेस और कोविड उसके साथ है। नहीं तो बाकी चीजें पहले हैं, उसके साथ थोड़ा धर्म को जोड़ लें। अब इसमें मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छा काम जो कर रहे हैं, आपने मुझे बुलाया था, लेकिन मैं आपको एक ऐसे वक्ता के बारे में बताना चाहता हूँ। हो सकता है आपको पता होगा या आपने कोशिश भी की होगी, जिनको आपको जरूर बुलाना चाहिए और जिनको आप सुनने के बाद आप कहेंगे कि अनिल जी को बुला के हमने फालतू में समय व्यर्थ किया, और वो है नवनीत मनोज जी। आपने एसबीआई म्यूचुअल फंड के एसबीआई म्यूचुअल फंड के वो CIO हैं, डायरेक्टर हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड में। जो उनकी समझ जैन धर्म के मामले में है और जिस तरह से, और अब मैं आपको बताऊं कि आपने 2 24 कैरेट गोल्ड, एक नीलेश भाई और दूसरे नवनीत जी, स्टॉक मार्केट में, मतलब मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये दोनों हमारे जैन भाई हैं। और मैं कई बार मजाक में ये कहता हूँ कि अब ऐसे लोगों का प्रोडक्शन ही बंद हो गया है। ये हो गए वो हो गए, इतने इंटेलिजेंट, इतने डाउन टू अर्थ और इतने
हमारे धर्म में विश्वास रख के काम करने वाले हैं। आज वो 7.5 लाख करोड़ रुपए का फंड मैनेज करते हैं नवनीत जी, 7.5 लाख करोड़ उनके अंडर में है। आप उनसे मिलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस आदमी के पास इतना कुछ है, और इतने सरल, और आप उनकी जो धर्म की नॉलेज आप देखेंगे, उनसे कम से कम 2 घंटे का समय लीजिएगा, तब आपको बहुत आनंद आएगा और जो सीखने को मिलेगा। और मैं ज्वाइन होऊंगा उस वाली कॉन्फ्रेंस में, एज ए व्यूअर मैं ज्वाइन होऊंगा, मुझे भी बुलाएगा, मैं दर्शक के तौर पर आना चाहूंगा। उनको सुनने का मजा ही अलग है, तो उन्हें जरूर बुलाइएगा, और जरूरत पड़े तो मुझे कहिएगा, मैं नवनीत जी से निवेदन करूंगा कि वो जरूर आए। नहीं, thank you Anil ji, thanks for encouraging words. Navneet ji happens to be I think a fellow professional brother. We come from the same town, हम दोनों ब्यावर से हैं। अच्छा, ब्यावर से? दोनों ससुराल है सर ब्यावर। और साथ में आई थिंक प्रोफेशन में ऑलमोस्ट 25 साल से है, और उसके पहले आई थिंक 5 साल से, बट right name I think already over there, and we wanted, I think we have a diversity, so I think that's where I think fund manager after fund manager after fund manager may not be the best part for us, but thank you for recommending, but very thankful for coming in and seeing the entire platform as your own, and being actually I think आलोच्य की बात करते हैं तो आपने बिल्कुल सही कहा कि let us do something what we can do better. So thank you very much. Thank you, friends. I think we got a bit 10 minutes overstepped, but very sorry. I think that we overstepped, but thanks for bearing with me and coming over. Thank you very much. Next week we will have for us a professor from IIM Ahmedabad, and I think he comes in, Shalinji Mehta, and that's when he comes in and speaks to us. Again, I think a noted speaker, I think understands things to the best, and the way a management, people, religion, and philosophy, I think gets combined. So I think it will be a pleasure to have you again 11 a.m. on 24th of May. Thank you very much.